અને હવે વાત કરીએ પ્રધાનમંત્રી મોદીના ગુજરાત પ્રવાસની તો પીએમ મોદી સાણંદ પહોંચ્યા છે. સાણંદમાં સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટનું પીએમ મોદીએ નિરીક્ષણ કર્યું. પ્લાન્ટનું નિરીક્ષણ કર્યા પછી યુવા એન્જિનિયર સાથે પીએમ વાર્તાલાપ કરશે. પીએમ મોદીના હસ્તે સેમિકન્ડક્ટર યુનિટનું લોકાર્પણ થશે. તો આ દ્રશ્ય તમારી ટીવી સ્ક્રીન પર પ્રધાનમંત્રી મોદી ગુજરાતના એક દિવસના પ્રવાસે છે અને હાલમાં પ્રધાનમંત્રી મોદી સાણંદ ખાતે પહોંચી ચૂક્યા છે, જ્યાં સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટનું પ્રધાનમંત્રી મોદીના હસ્તે લોકાર્પણ થવાનું છે. ત્યારે હાલમાં તેઓ જે આ સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ છે, જે સાણંદ સ્થિત છે, એ પ્લાન્ટનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે અને તે સમયના દ્રશ્ય તમારી ટીવી સ્ક્રીન પર છે. પ્લાન્ટનું નિરીક્ષણ કર્યા પછી યુવા એન્જિનિયર સાથે પ્રધાનમંત્રી મોદી વાર્તાલાપ કરવાના છે અને આ જે સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ છે તેના વિશેની માહિતી મેળવશે. પીએમ મોદીના હસ્તે જ આ સેમિકન્ડક્ટર યુનિટનું લોકાર્પણ થવાનું છે. હાલમાં આ દ્રશ્ય સીધા આણંદથી તમારી ટીવી સ્ક્રીન પર. અને પ્રધાનમંત્રી મોદીનો આ જે પ્રવાસ છે એ પ્રવાસ પણ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યો છે. મહત્વપૂર્ણ એટલા માટે છે કારણ કે અમદાવાદ એરપોર્ટ ખાતે મહત્વપૂર્ણ બેઠક પણ પ્રધાનમંત્રી મોદી કરવાના છે અને બેઠકમાં ગુજરાત રાજ્યની જે વર્તમાન સ્થિતિ છે એ સ્થિતિ અંગે પણ સમીક્ષા કરાશે. હાલમાં તો આજે સીજી સેમી પ્લાન્ટ છે, એ સીજી સેમી પ્લાન્ટનું લોકાર્પણ કરવા માટે પ્રધાનમંત્રી મોદી સાણંદ પહોંચ્યા છે. હાલમાં સાણંદ ખાતે જે આ સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે એ યુનિટનું તેઓ લોકાર્પણ કરી રહ્યા છે અને એની જે ખાસિયત છે એ ખાસિયત વિશે માહિતી મેળવી રહ્યા છે. સાથે જ એ જે પ્લાન્ટ છે એ પ્લાન્ટથી આ મુદ્દે વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે સંવાદદાતા દીપક. પ્રધાનમંત્રી મોદી સાણંદ ખાતે સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટનું જે યુનિટ છે તેનું લોકાર્પણ કરવા માટે પહોંચ્યા છે. શું માહિતી છે? આગામી કાર્યક્રમની રૂપરેખા પણ જણાવી દેજો. બિલકુલ, જે પ્રકારે ગુજરાતમાં સાણંદ જીઆઈડીસી ખાતે જે સેમી કંપની દ્વારા સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ ઉભો કરવામાં આવે છે તેનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે અને તેનું પ્લાન્ટનું ઉદઘાટન પણ કરવામાં આવ્યું છે. હાલ અહીં 300 કર્મચારી જે ચીપ છે તે બનાવવામાં આવશે. વિવિધ ટેલિકોમ હોય, 5G સહિતની જે ઇલેક્ટ્રોનિક તથા અન્ય જે પ્રોડક્ટ હોય છે જેમાં ચીપ લગાવવાની હોય છે તે ચીપ માટે પ્રોડક્શન કરવામાં આવશે. અત્યારે હાલ 300 થી પણ વધારે કર્મચારીઓ કામ કરી રહ્યા છે. આગામી સમયમાં 5000 થી પણ વધારે જેટલા કર્મચારીઓને રોજગારી આપવામાં આવશે. હાલ જે સાઉથની કંપની છે તેના દ્વારા અહીં લગભગ 7,500 કરોડથી પણ વધારેનું રોકાણ કરવામાં આવ્યું છે. નહીં એ રોજગારી પણ ઉભી થશે. મહત્વનું છે કે જે ચીપ બનાવવામાં આવે છે તે ચીપ હવે અહીં પ્રોડક્શન થશે, તે પણ ગુજરાતની અંદર. એટલે હાલ જે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી છે તેઓ અત્યારે હાલ પહોંચ્યા છે અને હવે તેઓ યુવા એન્જિનિયરો સાથે સંવાદ કરી રહ્યા છે કે જે હવે નવી ટેકનોલોજી આવી રહી છે અને કયા પ્રકારે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થઈ શકે તે તમામ બાબતો પર હાલ પીએમ યુવાઓ સાથે સંવાદ કરી રહ્યા છે. ત્યારબાદ પ્રભાસ સ્થળે પહોંચી અને સંબોધન. જી, માહિતી બદલ આભાર દીપક. તો સીધા દ્રશ્ય તમારી ટીવી સ્ક્રીન પર જે આ સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ છે એ સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટનું લોકાર્પણ પ્રધાનમંત્રી મોદીના હસ્તે થવાનું છે. પહેલા પ્રધાનમંત્રી મોદીએ એ જે સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ છે, સીજી સેમી પ્લાન્ટ, તેનું અવલોકન કર્યું અને જે તેની ખાસિયત છે તેના વિશેની તમામ માહિતી જાણી. હાલમાં જે હવે યુવા એન્જિનિયર છે, યુવા એન્જિનિયરની સાથે प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री ने सीधे संवाद किया है. इंजीनियरों और ऑपरेटर्स के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत हो रही है. इसमें महिला शक्ति भी है और युवा तो आपको दिखाई दे रहे हैं. Stop before you buy this. તો આ દ્રશ્ય તમારી ટીવી સ્ક્રીન પર. હાલમાં સાણંદથી આ સીધા દ્રશ્યો કે જ્યાં પ્રધાનમંત્રી મોદી આજે ગુજરાતના પ્રવાસે છે અને સાણંદ ખાતે પહોંચ્યા છે. જે સીજી સેમી પ્લાન્ટ છે તેનું ઉદઘાટન, લોકાર્પણ તેમના હસ્તે થવાનું છે અને આ જે અદ્યતન સેમિકન્ડક્ટર સુવિધા છે એ સુવિધાનું લોકાર્પણ થશે અને જે જનસભા છે તેને સંબોધિત પણ કરવાના છે પ્રધાનમંત્રી મોદી. લોકાર્પણ સાથે જ કંપનીમાં જે ચીપ ઉત્પાદન છે એની સત્તાવાર શરૂઆત થઈ જશે. ઉલ્લેખનીય છે કે સાણંદમાં અત્યાર સુધીમાં 2 સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટમાં ઉત્પાદન શરૂ થઈ ચૂક્યું છે અને વધુ એક કંપનીનું ઉત્પાદન પણ આ સપ્તાહના અંત સુધીમાં શરૂ થઈ જશે અને એ જે સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ છે તેનું લોકાર્પણ પ્રધાનમંત્રી મોદીના હસ્તે થશે. સાથે જ આપણે જણાવી દઈએ કે આ ભારત વૈશ્વિક સેમિકન્ડક્ટર વેલ્યુ ચેઇનમાં આ પ્લાન્ટના લોકાર્પણ બાદ વધુ મજબૂત બનશે કારણ કે 7,500 કરોડનું મોટું રોકાણ
અને સાણંદ ખાતે શરૂ થનારી જે આ સીજી સેમી ઓસેટ ફેસિલિટી છે એ ભારતની સેમિકન્ડક્ટર ઉત્પાદન યાત્રામાં એક ઐતિહાસિક સીમા ચિહ્ન સાબિત થશે. આ પ્રોજેક્ટ ઇન્ડિયા સેમિકન્ડક્ટર મિશન એટલે કે આઈએસએમ હેઠળ મંજૂર થયેલા પ્રથમ 4 પ્રોજેક્ટ્સમાંનો એક છે. આ અત્યાધુનિક ફેસિલિટી 7,500 કરોડથી વધુના કુલ રોકાણ સાથે વિકસાવવામાં આવી છે. આ મોટો પ્રોજેક્ટ ભારતને વૈશ્વિક સેમિકન્ડક્ટર વેલ્યુ ચેઇનમાં ખૂબ જ મજબૂત સ્થાન અપાવશે અને પીએમ મોદીના આત્મનિર્ભર ભારતના વિઝનને પણ નવી ગતિ પ્રદાન કરશે. સાથે જ આપણે જણાવી દઈએ કે વાર્ષિક 5 અબજ ચિપ્સનું ઉત્પાદન એઆઈ અને 5G ક્ષેત્રે વૈશ્વિક માંગને આ પ્લાન્ટ પૂરી કરશે. એકવાર સંપૂર્ણ રીતે કાર્યરત થયા બાદ આ ફેસિલિટી દર વર્ષે અંદાજે 5 અબજ સેમિકન્ડક્ટર ચિપ્સનું ઉત્પાદન કરવાની ભવ્ય ક્ષમતા ધરાવશે. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એટલે કે એઆઈ અને હાઈ પરફોર્મન્સ કોમ્પ્યુટિંગ ક્ષેત્રમાં પણ ઝડપથી વધી રહેલી વૈશ્વિક માંગને પહોંચી વળવામાં આ પ્લાન્ટ ખૂબ જ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે. સંવાદદાતા મેહુલ છે ફોનલાઈન પર. મેહુલ, પ્રધાનમંત્રી મોદી સાણંદ ખાતે પહોંચ્યા છે. જે સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ છે એ પ્લાન્ટને મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવેલો છે. તેનું લોકાર્પણ પ્રધાનમંત્રીના હસ્તે થવાનું છે. અત્યારે શું માહિતી છે? બિલકુલથી વાત કરવામાં આવે તો પીએમ મોદી ફરી એકવાર ગુજરાતની મુલાકાતે વતન આવી રહ્યા છે અને તેમની આ મુલાકાત મહત્વપૂર્ણ એટલા માટે પણ છે કારણ કે વધુ એક સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ છે તેનું ઉદઘાટન તેઓ કરી રહ્યા છે. જે માહિતી મળી રહી છે તે પ્રમાણે પીએમ મોદી આ જે સમગ્ર પ્લાન્ટ છે તેનું નિરીક્ષણ જે છે તે કરી રહ્યા છે. સેમિકન્ડક્ટર જે છે તેની અંદર જે ગુજરાતની અંદર વિશેષ 100 પ્લાન્ટ તૈયાર થવાના છે. તેના અંદર અત્યાર સુધી લગભગ 2 થી 3 જે પ્લાન્ટ જે છે તેની કામ પૂર્ણતા લઈ આવે છે અને જે બીજો પ્લાન્ટ જે તૈયાર થયો છે તેની અંદર સેમિકન્ડક્ટર જે છે તેનું નિર્માણ થશે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયા કયા પ્રકારની રહેશે તેનું નિરીક્ષણ પીએમ મોદી જે છે તે કરી રહ્યા છે. જે કંપનીના સંચાલકો છે તેમની સાથે પણ વાતચીત કરી રહ્યા છે. ગુજરાતમાં લગભગ 1.24 લાખ કરોડનું રોકાણ ધરાવતા 6 સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ પ્રોજેક્ટ છે તે તૈયાર થવાના છે અને આશરે 50,000થી વધુ પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રોજગારીનું નિર્માણ આ સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ થકી થવાનું છે. આ સેમિકન્ડક્ટર ક્ષેત્રે જે ગુજરાતની અંદર જે નવી પોલિસી આવી છે કે નવી પોલિસીના કારણે ખૂબ મોટું રોકાણ થઈ રહ્યું છે. સાણંદની અંદર જ આ બીજી ફેક્ટરી જે છે જે સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ છે જે તૈયાર થયો છે અને આ સિવાય ધોલેરાની અંદર પણ જે સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ જે છે તે તૈયાર થઈ રહ્યો છે. તે પણ ટૂંક સમયમાં કાર્યરત થશે તેવી માહિતી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. જી મેહુલ, માહિતી બદલ આભાર. सीजी सेमी के चेयरमैन गिरीश जी, यहां मौजूद अन्य सभी इंडस्ट्री लीडर्स, देवी और सज्जनों, आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है. 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे. हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है. साथियों, 2024 में इस प्लांट का शिलान्यास करने का अवसर मुझे मिला था. 2025 के अगस्त महीने में यहां टेस्टिंग चिप्स का काम शुरू हुआ और आज इस प्लांट का उद्घाटन हो गया है. शिलान्यास से प्रोडक्शन तक का ये सफर निश्चित रूप से अनेक साथियों के परिश्रम का परिणाम है. सोबैया जी जैसे लोगों के नेतृत्व का परिणाम है. अभी मंच पर आने से पहले मुझे इस प्रोजेक्ट से जुड़े अनेक साथियों से बातचीत करने का भी मौका मिला. एक प्रकार से लगता है कि इस परिसर में एक मिनी इंडिया बसता है.
हर भाषा के, हर पहनाव के, हर खान पान के लोग यहां हैं। यानी कि अलग सा माहौल मैंने अनुभव किया। एग्जीबिशन विजिट के दौरान भी मैंने कई बेटे बेटियों से बातचीत की और एक बात जिसको मैं बड़े गर्व से उल्लेख करना चाहूंगा, इन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल। जिस आत्मविश्वास से वो बातें कर रहे थे, टेक्नोलॉजी के संदर्भ में जो उनका विश्वास था कहने का, कम से कम मैं तो इंप्रेस हो गया। साथियों, सीजी सेमी का ये प्लांट भारत, जापान और थाईलैंड के हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स के साझा प्रयासों का भी प्रतीक है। ये केवल एक बिजनेस वेंचर नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, भरोसे और साझेदारी का ऐसा मॉडल है जो भारत की सेमीकंडक्टर जर्नी को नई गति देने वाला है। बीते 2.25 सालों में आप सभी ने स्क्रैच से स्केल तक इस पूरी फैसिलिटी को आकार दिया है। आज हम इसके कॉमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी। 20 करोड़। आपको लगता होगा कि मोदी जी ने गलती कर दी, 20 लाख को 20 करोड़ बोल दिया, इधर ताली बजाने में देर हो गई। 20 करोड़। और मुझे बताया गया आप सभी यहीं नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है। यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे। ये भरोसा इस बात का भी है कि सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम तेज गति पकड़ रहा है। स्टेप बाय स्टेप, ब्रिक बाय ब्रिक और अब चिप बाय चिप। मैं सीजी सेमी की पूरी टीम को, राज्य सरकार और पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मुझे जरा इस बात का थोड़ा आनंद ज्यादा है। आपको लगता होगा कि ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी को जरा आनंद ज्यादा है। इसका कारण यह है कि 20 साल पहले, शायद उससे भी पहले, मैंने गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए सारी योजना बनाई। गांधीनगर और प्रांतिज के पास 350-400 एकड़ जमीन तय कर ली। कुछ कंपनियों से बातचीत भी की। भारत सरकार भी उस समय बड़े बड़े बयान दे रही थी, तो कुछ कंपनियां बातचीत करने के लिए आती भी थी। लेकिन पता नहीं भारत सरकार को उस समय क्या हो गया
उनके पैरों में बेड़ियां लग गई और बात आगे नहीं चली। आज जब मैं इसे देखता हूं तो मेरा 20-22 साल पुराना जो सपना, और उस समय देश में इन विषयों की चर्चा कोई करता नहीं था, और मैं जी भी करता था तो यहां मीडिया वाले मेरी मजाक उड़ाते थे। उस समय नहीं हो पाया, लेकिन आज जब हो रहा है तो सर्वाधिक खुशी मैं अपने भीतर से अनुभव कर रहा हूं। आप देखिए, अभी कुछ हफ्ते पहले खबर आई, मुझे हैरानी है कि मीडिया ने जितना उस पर ध्यान जाना चाहिए गया नहीं। भारत में बना हुआ C295 विमान बड़ौदा में बना और हवा में उड़ान भी भरी। एक जमाना था साइकिल बनाने वाला भी कोई आ जाए ना तो हम मिठाई बांटते थे। दोस्तों, आजकल हवाई जहाज बनाने वाले आ रहे हैं। साथियों, आप सभी जानकार लोग यहां बैठे हैं। मैं देख रहा हूं बहुत सारे युवा साथी भी यहां मौजूद है। हम अगर दुनिया के औद्योगिक इतिहास को देखेंगे तो एक बात स्पष्ट होती है, दुनिया की कोई भी ग्लोबल इंडस्ट्रियल पावर किसी एक अकेली फैक्ट्री से नहीं बनी। इंडस्ट्रियल पावर की नींव क्लस्टर्स होते हैं। अमेरिका की सिलिकॉन वैली, ताइवान का शिंचू साइंस पार्क, जापान का सिलिकॉन आइलैंड, सुकुबा साइंस सिटी, ये सब क्लस्टर के महत्व को दर्शाते हैं। आज साणंद भी उसी दिशा में अपने कदम बढ़ा रहा है। साथियों, कुछ ही महीनों में यहां माइक्रोन, केन्यास और सीजी सेमी ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया। यानी देश में एक सेमी कंडक्टर क्लस्टर जन्म ले रहा है और आज यहां चिप्स की पैकेजिंग हो रही है। कल यहां विशेष कंपनियां आएगी, केमिकल्स का उत्पादन होगा, नई टेस्टिंग लैब बनेगी, मशीनों की सर्विस करने वाले उद्योग आएंगे, डिजाइन सेंटर्स खुलेंगे और फिर यहां से नए स्टार्टअप भी निकलेंगे। यही क्लस्टर की ताकत होती है। एक उद्योग सैकड़ों उद्योगों को जन्म देता है। सैकड़ों उद्योग लाखों रोजगार पैदा करते हैं और ये लाखों रोजगार पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बदल देते हैं। और ये सिर्फ साणंद में ही नहीं हो रहा, देश के अनेक राज्यों में भी सेमीकंडक्टर के क्लस्टर बन रहे हैं। साथियों, आज भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर के इस उभार से सभी उत्साहित हैं। देश दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। अक्सर लोग इसको आइसोलेशन में देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग का विस्तार अचानक नहीं हुआ है। ये पिछले एक दशक में भारत में आई इलेक्ट्रॉनिक क्रांति का नेक्स्ट स्टेप है। साथियों, हमने शुरुआत
मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग से की। एक समय था जब भारत अपनी जरूरत से भी अधिकांश स्मार्टफोन, ज्यादातर स्मार्टफोन हम विदेश से ही मंगाते थे और आज भारत में मोबाइल फोन प्रोडक्शन पहले के मुकाबले 33 गुना ज्यादा हुआ है। आज भारत यानी जो 2014 के पहले मोबाइल फोन बाहर से लाता था, आपने मुझे जब गुजरात से दिल्ली भेजा तो भारत मोबाइल दुनिया में भेज रहा है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है और दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल एक्सपोर्टर भी है। साथियों, बीते वर्षों में हमने पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत किया है। आज भारत का टोटल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन 2014 के मुकाबले लगभग 7 गुना बढ़ चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट लगभग 11 गुना बढ़ चुका है। साथियों, हमारा प्रयास सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट में आत्मनिर्भरता तक सीमित नहीं है। हमारा प्रयास कंपोनेंट्स में भी आत्मनिर्भरता की तरफ है और इसलिए अब भारत का अगला कदम उठ रहा है। हम केवल मोबाइल नहीं बनाएंगे, हम केवल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बनाएंगे, हम उन चिप्स का निर्माण भी करेंगे जिनसे इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी दुनिया चलती है। और यही हमारी रणनीति है। पहले प्रोडक्ट, फिर कंपोनेंट्स और अब सेमीकंडक्टर यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी वैल्यू चेन भारत में होगी। यह विकसित भारत का रोड मैप है। यही मेक इन इंडिया का अगला चरण है। साथियों, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का नेक्स्ट स्टेप है क्रिटिकल मिनरल्स और हाईटेक मटेरियल्स में आत्मनिर्भरता। और अभी सुभैया जी बीच बीच में गुजराती भी बोलते थे। उन्होंने गुजराती कहावत सुनाई, निशान चूक माप पर नहीं माप नीचू निशान। और इसलिए मेरा भी वही स्वभाव है, मैं लक्ष्य छोटे नहीं रखता, मैं सोच छोटी नहीं रखता। अगर स्टैच्यू भी बनाता हूं तो दुनिया में सबसे बड़ा बना के रख देता हूं। और जैसा सुबह जी ने कहा, सुनते हो ना विनोद, काम बोलता है। काम बोले थे। ये जो प्रोग्रेस दिख रही है, ये जो अचीवमेंट दिख रहे हैं, इससे जुड़ी सप्लाई चेन को मजबूत करना, ये भी हमारा लक्ष्य है। आज भारत इसी दिशा में व्यापक प्रसार कर रहा है। हमारा लक्ष्य है कि चिप डिजाइन से लेकर फैब्रिकेशन और पैकेजिंग तक का पूरा इकोसिस्टम भारत में ही विकसित हो और भारत
चिप तो बनाएगा ही, भारत का युवा मेड इन इंडिया चिप पर एआई, रोबोटिक्स और नेक्स्ट जेन टेक क्रांति को भी गति देगा। मुझे भारत की युवा शक्ति पर, भारत की युवा टैलेंट पर अटूट विश्वास है। मेरे देश की युवा शक्ति और उनके सामर्थ्य पर मेरा पूरा भरोसा है। साथियों, मैं इस अवसर पर देश की युवा शक्ति से एक बात जरूर कहना चाहता हूं। जब भी दुनिया में कोई नई औद्योगिक क्रांति आती है तो सबसे अधिक अवसर युवाओं के लिए पैदा होते हैं। एक समय आईटी क्रांति आई तो उसमें लाखों भारतीय युवाओं को अपना सामर्थ्य दिखाने का मौका मिला। फिर स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का दौर आया, उससे भी लाखों युवाओं को नए अवसर मिले। ये जो सेमीकंडक्टर रिवॉल्यूशन और एआई रिवॉल्यूशन का दौर है, ये भी अनगिनत नए अवसर लेकर के आ रहा है। रिसर्च और डिजाइन से लेकर स्टार्टअप इनोवेशन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट तक अनेक अवसर है। साथियों, जरूरत नई स्किल की है, नए आइडियाज की है। अब मायने ये रखता है कि आपके पास नया आइडिया है या नहीं, आपके पास कुछ नया सीखने, नया करने का जज्बा है या नहीं। मैं आज जिन बेटियों से मिला, झारखंड, बालाघाट मध्य प्रदेश, कोई केरल से, कोई छत्तीसगढ़ से और जय जोहार से ही हमारी बात शुरू हुई, क्योंकि मैं उस क्षेत्र में रहा हूं तो मुझे पता है। उन बेटियों ने जिस तेजी से चीजों को सीखा है और जिस तरीके से वो चीजों को वहां कंडक्ट कर रही थी, गर्व होता है मेरे देश की युवा शक्ति पर। साथियों, आने वाले समय में एआई आपके सामने नई स्किल्स, नई एक्सपर्टाइज का पूरा संसार खोल देने वाली है। इसलिए भारत के युवाओं को अभी अवसर गंवाना नहीं है। और मैं नौजवानों आपको कहता हूं, आइडिया आपका, साथ मेरा। साथियों, ये फैसिलिटी, ये प्रोजेक्ट भी इस बात का प्रमाण है कि भारत के युवा कैसे नई संभावनाओं से जुड़ रहे हैं। यहां काम करने वाली बहनें से बेटियां, जैसा मैंने कहा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सारा ट्राइबल बेल्ट से आई हुई बेटियां हैं। उन बेटियों ने जब मुझे फैक्ट्री दिखाई और बड़े जोश और उत्साह के साथ एक एक चीज के बारे में विस्तार से मुझे बता रही थी। साधारण परिवार, साधारण स्कूल, आईटीआई की पढ़ाई। हमारे यहां तो आईटीआई में कोई दाखिल होता है तो मां बाप किसी को बताते नहीं है कि आईटीआई पढ़ता है, शर्म आती है। अब वक्त बदल चुका है, आईटीआई वालों का जमाना है। पढ़ाई भले आईटीआई में हुई हो, इनके सपने असाधारण है। इनमें से कई बेटियों के परिवार में कभी किसी ने पासपोर्ट तक नहीं बनवाया था, देखा तक नहीं था। इनमें से कई बेटियों ने तो दिल्ली, मुंबई तक नहीं देखा था। विदेश जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन वही बेटियां ट्रेनिंग के लिए मलेशिया गई, दुनिया की सबसे आधुनिक सेमीकंडक्टर तकनीक सीखी और आज ये सभी मेड इन इंडिया चिप निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा है।
मुझे याद है जब सुबैया जी ने मुझे एक बार दिल्ली में एक वीडियो दिखाया था, 3 मिनट का वीडियो था, इन बेटियों के जीवन पर था। वो जंगलों में कैसे रहती थी, खटिया पर बैठ के कैसे पढ़ती थी, और फिर वो एयरपोर्ट पर अपना चेकअप के लिए खड़ी हुई है और जा रही है वो क्लियरेंस करके मलेशिया के लिए। तो मैंने तुरंत उनको कहा था कि मैं हो सके उतना जल्दी जब भी गुजरात आऊंगा तो गवर्नर हाउस में इन बेटियों को बुलाकर इनसे बातचीत करूंगा। वो तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन आज मुझे वो अवसर मिल गया। थैंक यू सुबैया जी। मैं इन सभी बेटियों को, उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का यह अवसर इस बात का भी प्रमाण है कि भारत को विकसित बनाने के लिए हम कितने अधीर हैं। इस वर्ष की शुरुआत में मैंने कहा था कि वर्ष 2026 में 4 सेमीकंडक्टर फैसिलिटी शुरू हो जाएगी, और आज मेरे मंत्री ने कह दिया नहीं 4 नहीं 5 हो जाएगी। और मुझे खुशी है कि 6 महीने में 3 प्रोजेक्ट में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। यानी आज का भारत बड़े लक्ष्य भी रखता है और उन्हें समय पर पूरा भी करता है। भारत यही भरोसा पूरी दुनिया को, हर इन्वेस्टर को भी देता है। हमारी नीतियों में स्थिरता है, हमारे निर्णयों में स्पष्टता है और हमारे एजुकेशन में गति है। मैं सीजी सेमी के मैनेजमेंट को, अन्य इन्वेस्टर्स को भी आश्वस्त करता हूं, रिफॉर्म्स का जो रास्ता भारत ने चुना है, जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर हम चल पड़े हैं, वो और गति पकड़ेगा। आज का भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। इसी कमिटमेंट से ही 140 करोड़ भारतवासी 2047 तक भारत को विकसित बनाकर रहेंगे। और आज 18-20 साल के नौजवान है ना, ये मोदी इसलिए मेहनत करता है कि जब आप 40-45 साल के हो, जब आपके घर में बच्चे बड़े हो रहे हो, तब आप अपने बच्चों को विकसित भारत में बड़े करते देख सकें। इसलिए मैं मेरी जिंदगी खपा रहा हूं आपके बच्चों के भविष्य के लिए। साथियों, हम विकास के राह पर चल पड़े हैं। हम प्रगति की नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और इसमें सेमीकंडक्टर का एक क्षेत्र एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर के नया विश्वास पैदा कर रहा है। मैं आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप भी ऊंचे लक्ष्य लेकर के चले, निशान चूक होगा तो देखा जाएगा। लेकिन हम चल पड़े। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પ્લાન્ટનું ઉદઘાટન કર્યું। પીએમ મોદી સાણંદ ખાતે પહોંચ્યા છે અને તેમને તમામ લોકોને આ સંબોધન કર્યું છે। સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટનું લોકાર્પણ કરતી વખતે તેમને અનેક બાબતો છે તે યાદ કરી છે। નાનું લક્ષ્ય નથી રાખતો અને આ મોટા એક બાદ એક જે વિકાસના કામો છે તે હાંસિલ કરવામાં આવી રહ્યા